Physics grade 11, chapter number 7, oscillation. My dear student, oscillation mean vibration. Vibration mean to and fro motion of a body about its mean position. Chapter 7 का it's a very very important topic. Grade 10th में आपने सिर्फ ambiguous किस्म का वो लिखा था time period of. Now today we are going to drive the formula of time period of simple pendulum. Number 1. Time period, time to complete one vibration. What is simple pendulum? Any spherical shaped body attached with the inextensible string, other end of the string attached with the rigid support. This mass string system is called simple pendulum. अगर my dear student definition आए तो you have to write down in this way. Understand? Okay, simple pendulum define हो गया. Now we are want to drive or prove motion of a simple pendulum executing SHM. What is SHM? Acceleration produced in a body is always directly proportional to its displacement. स्टार्ट करते हैं, प्लीज जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा. SHM, क्योंकि ये SHM मीन डेफिनेशन ही मैंने एग्जाम में इसमें बोर्ड पे लिखनी, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, मैथमेटिकल स्टेप समझने हैं, एंड यू शुड राइट दिस टॉपिक योर ओन वर्ड्स. ओके. Acceleration produced in a body is always directly proportional to its displacement. A proportional to x. Minus sign shows bodies always come back to its mean position. मैं आपको इसकी पूरी मोशन का एक्सप्लेन करूंगा and you should write your own words. Let us consider this motion. ये जो बोर्ड पे लिखी है मोशन A proportional to minus x, this is called SHM. SHM को डिफाइन कैसे करना है? When net force act upon it, the body is going to accelerate. This acceleration is directly proportional to its displacement and body always directed towards its mean position. This A proportional to minus x is called SHM, simple harmonic motion. It's a type of oscillatory motion. Let us consider, अभी मैं derivation पे जाने लगा हूं, how to drive this relation or how to prove motion of simple pendulum executing SHM. M is the mass of the body which is at mean position. By applying some external force, the body displaces from O towards A. Then release it. After releasing from A, the body starts oscillating. Number of points, please note it. Mg is the weight of the weight of the body. Weight Mg resolve into its components. Two components, my dear students. Mg cos theta and Mg sin theta. Two components are there. कौन से कंपोनेंट्स? mg cos theta and mg sin theta. गुड. डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स आपको पता है माशाल्लाह, आपने चैप्टर 4 में 9th 10 में बड़ा किया हुआ है. द कंपोनेंट्स विच आर अलोंग द स्ट्रिंग, टेंशन भी आपको माशाल्लाह पता है. टेंशन इज अ फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग. ये टेंशन है. द फर्स्ट कंपोनेंट्स T is equal to mg cos theta. There is no movement along the string, so horizontal components are balance or cancel the effect with each other. Two equal but opposite. ये फिगर और से देखिएगा. Two equal but opposite forces. T balance the effect of mg cos theta. What is the restoring force, my dear student? The force which compel the body coming back to its mean position. तो जैसे आपने स्प्रिंग कांस्टेंट में मास अटैच टू अ स्प्रिंग में आपने पढ़ा था F is equal to minus kx. Now in this stage, simple pendulum में what is the restoring force? F is equal to minus mg sin the components mg sin theta for which the bodies come back to its mean position. ये वो components हैं, vertical components. ठीक है. तो ये जो इसको हम क्या कहेंगे, प्लीज नोट इट, इसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स. ये सिंपल पेंडुलम की रिस्टोरिंग फोर्स है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी तक यहां तक बेसिक पॉइंट सारे वही हैं. अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं. नाउ देयर आर मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन.
body pass towards mean position because velocity is maximum at mean, acceleration चूंकि a proportional to x है, acceleration is 0 at mean, body comes to rest at extreme, velocity becomes 0, x become maximum, a become maximum. The same situation on the other side. इसलिए दूसरी फिगर आपने देखा हायर क्लासेस में, उस साइड को जो प्रोसेस ए पे होगा वही बी पे होगा. सेकंड पॉइंट इज, जो अक्सर बुक्स में डिटेल नहीं दी होती, मैं बताता हूं. चूंकि वेलोसिटी यहां पे जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी आल्सो भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि मैक्सिमम हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी बिकम टू बी मैक्सिमम. नोटेड. अभी चूंकि यहां पे v मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टू बी मैक्सिमम, और चूंकि हाइट यहां पे आके जीरो हो जाती है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बिकम टू बी जीरो. ये आपने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड, क्योंकि F इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, ma. F इज इक्वल टू ma, दिस फोर्स माइनस mg sin थीटा. बाय कंपेयरिंग 1 and 2, बाय कंपेयरिंग 1 and 2, देखें क्या होता है अभी आपके सामने. ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा. माय डियर स्टूडेंट, साइन थीटा कहता है एंगल इज टू स्मॉल, इट्स साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट. m कैंसिल कर दें, इज इक्वल टू माइनस जी थीटा. साइन थीटा एंगल इज टू स्मॉल, इट्स वैल्यू कहता है साइन थीटा ले ले, थीटा बिकम्स टू बी. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे थोड़ा सा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जैसे s इक्वल टू आर थीटा करते थे, तो यहां पे थीटा की वैल्यू जरा गौर से देखिएगा. थीटा यहां पे आएगा अपोजिट टू दैट ऑफ ये जो आर्क है, आर्क इसको हम OA कह दें, OA, ये O, ये आपकी उसकी लेंथ आ गई, तो थीटा की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट आ जाएगी x बाय एल. व्हाट इज x बाय एल को जब आप पुट करेंगे इस लास्ट एक्सप्रेशन में, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल, x को सेपरेट कर लें, माइनस जी बाय एल. g इज अ ग्रेविटी, l इज अ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट ऑलवेज इक्वल टू, ये याद रखिएगा, रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट. जब g बाय एल कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं बाय रिमूविंग द कांस्टेंट, यस, कांस्टेंट को रिमूव करने से वो यूज साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. यस, आप इस पे क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन माइनस एक्स. व्हाट इज दिस, यस, दिस इज कॉल्ड SHM, acceleration produced in a body due to some net force proportional to minus x. It's the first part of this lecture. Simple pendulum की motion को we are going to execute SHM. अभी हम चलते हैं जो आपने मैट्रिक में सिर्फ क्या लिखा था, the time period of simple pendulum. This now in this class we should drive this one. इसका आप expression का नाम रख लें, expression for time period. Expression फॉर टाइम पीरियड. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह जुलाई के एंड तक मैं मैक्सिमम फिजिक्स अपलोड कर दूंगा, एक एक टॉपिक, एक एक न्यूमेरिकल, MCQs भी इंशाल्लाह डाल दूंगा. अकेडमीज में जाने की कतई जरूरत नहीं है. अकेडमी वाले मुझसे कुछ खासे भाई मैंने नाराज हैं कि आप सर ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक एक चीज मैं डिस्कस करके मैं अपलोड करूंगा. प्लीज इसको वॉच करें, अगेन एंड अगेन वॉच करें. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी मुझे कमेंट्स में बताइएगा. लीजिए अभी हम चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ. एक एक्सप्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ये पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सा देखिएगा. एक्सेलेरेशन की एक फॉर्म है एंगुलर मोशन की, ये वाली, ये चूंकि पिछले लेक्चर्स के पार्ट है वहां से मैंने लिया है. एक एक्सेलेरेशन जो हमने यहां पे ड्राइव किया है माइनस जी बाय एल एक्स, जब इन दोनों ए से इक्वेट हो जाएगा, एक्स एक्स से हो जाएगा, माइनस माइनस से, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आ गई जी बाय एल. तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई जी बाय एल अंडर द रूट. ले जी, अच्छा अभी हमने टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स जरा देखिएगा. यहां पे
आपने वी नो दैट, बस आपने लिखना है वी नो दैट। क्या लिखना है जी? वी नो दैट, प्लीज वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये रिलेशन डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आपने बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में किया है। यहां पे हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 पाई बाय जी बाय एल अंडर रूट डिनोमिनेटर में आ गया। जब आप इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एल बाय जी अंडर रूट। ये है जी माय डियर स्टूडेंट जो मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि प्लीज ये आपको फार्मूला एफएससी में जाके आप ड्राइव करेंगे, उस बच्चे का सर कैसी बात कर रहे हैं, वहां हम डायरेक्ट लिख देते थे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज दिस। इन दिस लेवल वी शुड ड्राइव। कहां से ड्राइव किया है? एक रिलेशन जो एंगुलर मोशन वाला है उसको सामने रखें, एक एक्सेलरेशन जो हमने सिंपल पेंडुलम के लिए, तो ये ओमेगा की वैल्यू समझे कांस्टेंट के साथ, जब हम ये जो कांस्टेंट ले रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट बुक्स में के लिया होगा समथिंग एल्स, आप इसको ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी के साथ कंपेयर कीजिएगा और ओमेगा की वैल्यू आ गई जी बाय एल, और ये फार्मूला आपने टाइम पीरियड का पुट किया है। और टाइम पीरियड आपने, अच्छा अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज मेंट बाय सेकंड पेंडुलम। यस, सेकंड पेंडुलम होता है कि अगर कोई पेंडुलम विच कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, इसलिए उसको कहते हैं सेकंड पेंडुलम। एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में जो सिंपल पेंडुलम कंप्लीट करता है उसको कहते हैं सेकंड पेंडुलम। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, सेकंड्स पेंडुलम। ये शॉर्ट आंसर है, मैं एक लाइन में से लिख देता हूं। पेंडुलम विच completes 1 vibration in 2 seconds। सिंपल से 2 सेकंड में, विच इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। ये सेकंड पेंडुलम की माय डियर स्टूडेंट डेफिनेशन है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आपको माशाल्लाह पता ही है। जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी भी आपको निकालना बता सकता है तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम की क्या निकालेंगे फिर 2, तो ये 0.5। ये एमसीक्यू है आपके लिए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम? उसने नहीं आपको कुछ भी बताना, यू शुड नो अबाउट कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है 2। 1 वाइब्रेशन जो 2 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो टी की जगह 2 पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 0.5 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन माशाल्लाह आपने बिगनिंग में किया है। दे आर ऑलवेज रेसिप्रोकल विद ईच अदर। तो दिस इज द वे माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोशिश मैंने की है एक एक पॉइंट सिंपल पेंडुलम चैप्टर नंबर 7 का मोस्टली जो टॉपिक एग्जाम में आता है वो इस किस्म का है। अगर इसमें मजीद कोई चीज आपको डिफिकल्टी लगे तो आप इसमें देखिएगा। तो फिर वो कहेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? शाबाश, नंबर 1 मैथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द, अगर आप लाहौर को भी विजिट करें तो यूएटी का गेट नंबर 2 में आप जाएं तो साइंस एग्जीबिशन लगी होगी, इंजीनियर्स ने एक सिंपल पेंडुलम पूरे रूम में जबरदस्त, वो हर वक्त वाइब्रेट करता है ड्यू टू सम रीजन। वो मुझे बताइएगा आप कि वो हर वक्त वाइब्रेट क्यों करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर था। इसको प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें और घर बैठे आप इंजॉय करें। कोई मुश्किल हो मुझे बताइएगा। तो मैं बताने लगा था टाइम पीरियड किन फैक्टर डिपेंड करता है? मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ, ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना टाइम पीरियड उसका मैक्सिमम होगा। जी पे, जी के ये इनवर्सली है। तो बहरहाल ये फैक्टर्स हैं कि एक इंडिपेंडेंट है मैथ्स पे और ये लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।